So the stack maintains which stack is a data structure order. That means from receive. What is the name of that order? Which order the stack maintains? LIFO. Class, what is the full form of LIFO? Last in, first out. लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या है, कोई एक Last बताओ। in, first out. इसका मतलब क्या होता मैम जो है? लास्ट में एंट्री से होगा आई वो हैव अ फर्स्ट में एग्जिट होगा। राइट राइट say I have some elements, say I have a blank stack at first, it is blank. Now if I have to insert, I have to go to the first index, then I will say I'm entering a data. Then if I want to enter another index, then I have to go to the next index. I have to create another one. Then I may add another data here. Say I am adding 6 here. Say I want to insert again, then I will create another index in the right. Then I will insert data here. Now then again if I want to insert, then I again will create a location here and I will insert here. Now say now if I want to retrieve or process a data, which data will be processed at first? Which data will be processed at first? Within this data, among this मैम data, 1, 8। 6, 7, 8, which data will be processed at first? 8. 8 will be processed at first. Then that means this data will be deleted. Then after that, 7 will be processed. Then again, this will be deleted. Then after that, 6 will be processed. Then again, this portion will be deleted. Then after that, 1 will be processed. Then this portion will be deleted. Now in this situation, if we want to delete some element again, then what error is given? If we want to delete an element from a blank stack, then what error is given? मैम स्टैक अंडरफ्लो। Batao? Stack underflow. Or if we have a full stack and there we want to insert another data again, then what error is given? Stack मैम स्टैक overflow. ओवरफ्लो। Stack overflow, right? In Python, if we are implementing a stack using list, then will the stack overflow error occur? Will the stack overflow occur? Python में stack overflow error आता है list से implement कर रहे तो? Yes or no? Stack overflow होगा या नहीं होगा if we are implementing the stack by list? The answer is no, because we can extend the list as we wish. जितना चाहे हम list को extend कर सकते हैं, ठीक है? और stack underflow error होता है. Next question is, if what is the name of the function that we use for inserting and data inside a stack? Stack में data insertion के लिए जो function हम use करते हैं उसका नाम क्या है? पुश। पुश फंक्शन. स्टैक में जो फंक्शन हम यूज करते हैं डेटा रिट्रीविंग के लिए उसका नाम क्या है? पॉप। Pop. पॉप फंक्शन. So these are the basic thing you have to remember. Another, I have discussed the code in last class. I am opening it again. See, this is the code. I think you had taken the screenshot and you written the code also in your copy. Just fill the type of code again. This is a blank stack. Stack equals to a blank list I have taken. Now I am appending stack.
लिस्ट क्या था, ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। जब अपेंड किया, ब्लैंक लिस्ट में अपेंड किया मतलब क्या है, एक सेल हमने क्रिएट किया जिसका वैल्यू हो गया, ये हो गया पुश। से हम क्या कर रहे हैं, पुश फंक्शन यूज, मतलब पीछे और एक सेल क्रिएट हो जाएगा, इसके पीछे और एक सेल क्रिएट हो जाएगा, बी अपेंड हो गया। सी मतलब इसके पीछे और एक सेल क्रिएट हो जाएगा, सी अपेंड हो गया। ओके, इन दिस डेटा एडेड स्टैक। तो ये फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, कौन सा स्टैक का, पुश। पॉप करेंगे, पॉप फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट को रिट्रीव फर्स्ट वाले में जब करेंगे कौन सा वैल्यू रिट्रीव होगा, बताओ, विच वैल्यू विल बी है डेटा, उनमें से पहली बार पॉप करेंगे तो कौन सा डेटा को हम रिट्रीव कर पाएंगे, सी। सी। क्लास बताओ। मैम सी। लास्ट, लास्ट में कौन, सी। ए बी सी के अंदर लास्ट में कौन सा वाला वैल्यू हमने पुश किया है, सी। पड़ रहा था एक, एक बार तो फिर तो इस क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा ये जो लोकेशन है, और एक मैम योर वॉइस इज डिस्टर्ब। वॉइस इज नॉट क्लियर। है और फंक्शन कॉल किया गया है। सो अभी कौन सा वैल्यू पॉप होगा, अनीशा बताओ, अनीशा बताओ। अन्वेषा, मैम आपका वॉइस कट जा रहा है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। यस Is मैम। it clear now? यस मैम। Which value will be बी। popped? बी। B will be popped, right? अभी फिर से देखो, 3 बार पॉप फंक्शन कॉल किया गया है, अभी कौन सा वैल्यू पॉप आउट होगा, ए। ए, राइट। देखो 3 बार पॉप किया गया है, 3 बार हमने pop, तो नाउ एम्प्टी, ठीक है, स्टैक कर रहे हैं। अब स्टैक को प्रिंट करें तो एम्प्टी, अब देखो लिखा है अनकमेंटिंग प्रिंट स्टैक डॉट पॉप, अनकमेंटिंग प्रिंट स्टैक डॉट पॉप, मतलब यहाँ पे इस डॉट पॉप कॉल करके क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा था पहले, और एक बार रिपीट कर दीजिए।
Not your voice. Ritaza, now am I audible? अभी सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अब बताओ, ये जो स्टैक एम्प्टी हो गया है, इस टाइम में अगर हम पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेंगे एरर। एरर आएगा. ओके, सो दिस कोड आई थिंक इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, now I am showing a code, another code. यही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम, बट it is defined in the form of functions. The program is defined in the form of functions. ठीक है, देखो, in class 11 you have learned defining function, right? फंक्शन लिख Yes, के ma'am. कोड लिखना आता है ना. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन, तीन फंक्शन हमने क्रिएट किया है. पहले वी आर यूजिंग द पुश फंक्शन. ओके, पुश फंक्शन में पहले का जो कोड था, इसमें हम क्या किए थे, कैसे पुश फंक्शन को यूज किए थे, देखो, दोनों मैं पास पास रख रही हूँ ताकि कैसे एक कोड को हम फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको तुम लोगों को समझ में आए. देखो, यहाँ पे जब हम अपेंड कर रहे थे तो सिंपल स्टैक डॉट अपेंड ही यूज किए थे ना, तो यहाँ पे भी स्टैक डॉट अपेंड ही यूज कर रहे हैं. पुश फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट रहेगा, दैट इज वी आर अपेंडिंग द एलिमेंट टू द स्टैक. स्टैक क्या है, पहले की तरह ही एक ब्लैंक लिस्ट है. इनिशियली इट इज अ ब्लैंक लिस्ट. पुश फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टैक डॉट अपेंड कर रहे हैं, मतलब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम स्टैक के अंदर अपेंड कर रहे हैं. एलिमेंट मिल कहाँ से रहा है, देखो, ये जो मेन पार्ट है, इसमें हमको चॉइस दिया है. कैसे, while true. while true का मतलब क्या है, ये जो while लूप है, इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइटली, जब तक चाहे ये एग्जीक्यूट हो सकता है. ठीक है, जब तक ब्रेक नहीं मिल रहा है. while के अंदर कंडीशन ट्रू है, मतलब ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, मतलब यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका हो सकता है, when we are getting a break. ओके, अब यहाँ पे आके कुछ मेन्यूज दे रहे हैं. why do you need to learn this program? for the practical purpose. प्रैक्टिकल पर्पस में ऐसे डायरेक्टली कोड लिखने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट डाउन अ मेनू इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. ओके, देयरफॉर वी आर क्रिएटिंग अ मेनू. कैसा मेनू, यूजर को मिलेगा प्रेस 1 टू पुश, प्रेस 2 टू पॉप, प्रेस 3 टू डिस्प्ले, प्रेस 4 टू एग्जिट. ठीक है, यूजर को मिलेगा ये मेनू. ओके, यूजर विल सी ऑल दिस मेनू. अब जब यूजर 1 प्रेस कर रहे हैं, जब कुछ इनपुट दे रहा है, तो वो इनपुट किसके अंदर जा रहा है, ये ch के अंदर जा रहा है. ठीक है, अब ये ch का वैल्यू जब 1 हो रहा है, if ch is equals to 1, if ch is equals to 1, तो हम क्या बोल रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर एन एलिमेंट टू पुश. कौन सा एलिमेंट तुम एंटर करना चाहते हो, पुश करना चाहते हो, वो इनपुट करो. इनपुट जाके कहाँ पे इनपुट हो रहा है, इन वेरिएबल पे. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पुश फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसका आर्गुमेंट है n. ये जो पुश फंक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा. पुश n, यहाँ पे है पुश ele, मतलब इस ele का वैल्यू हो जाएगा n, जो यूजर इनपुट किया है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ele पे.
तो सिंपल चीज हम क्या कर रहे हैं, हम अपेंड कर रहे हैं स्टैक के पीछे ये जो ये एलिमेंट है इसको अपेंड कर रहा है। तो पुश फंक्शन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक अपेंड स्टेटमेंट होगा, बिकॉज वी डोंट नीड टू चेक वेदर स्टैक ओवरफ्लो इज ऑकरिंग और नॉट, बिकॉज लिस्ट में स्टैक ओवरफ्लो कभी भी होगा ही नहीं। ओके अब प्रेस 2 टू पॉप, यूजर क्या करेगा, अगर पॉप करना है तो यूजर क्या करेगा, 2 पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, एलिफ ch का वैल्यू अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, पॉप फंक्शन कॉल करेंगे। तो पॉप फंक्शन में क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे पॉप फंक्शन में क्या हो रहा था, सिर्फ स्टैक डॉट पॉप कॉल कर रहे थे हम लोग, और जब अगर जो एलिमेंट्स है वो सारे पॉप करने के बाद हम फिर भी स्टैक डॉट पॉप कर रहे थे तो इट विल जनरेट एन एरर। फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एरर हम जनरेट नहीं करने देंगे। व्हेन वी आर डूइंग दिस मेनू बेस्ड प्रोग्रामिंग, एरर हम जनरेट नहीं करने देंगे। क्या कर रहे हैं हम देखो, यहाँ पे ट्राई लिख रहे हैं, ट्राई ब्लॉक में हम जब कोड लिखते हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, ट्राई ब्लॉक में हम जब कोड लिखते हैं तब एरर जनरेट नहीं होता है, एरर हैंडल्ड हो जाता है। मतलब एरर होने से जो कोड है वो बंद होके बाहर नहीं आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब भी एरर जनरेट होगा द कोड विल, यहाँ पे जब भी एरर जनरेट होगा द कोड विल शट डाउन, और कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम वो कोड जिससे एरर जनरेट हो सकता है, ऑब्वियसली दिस इज अ स्टेटमेंट जहां से एरर जनरेट हो सकता है, तभी भी एरर जनरेट होगा इफ यू आर ट्राइंग टू डिलीट और पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में रखेंगे, ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। ट्राई ब्लॉक में रखने से क्या होगा, ये एरर हैंडल होगा, मतलब कोड ऑफ नहीं हो जाएगा। लेकिन कोड तो ऑफ नहीं हो जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, नीचे एक एक्सेप्ट ब्लॉक रखना है। कभी भी अगर तुम ट्राई ब्लॉक में कुछ भी कर रहे हो तो उसके नीचे मतलब एरर जनरेट होके वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में आके क्या प्रिंट करेगा, स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक बार मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी पॉप फंक्शन कॉल होगा, क्या होगा, पॉप फंक्शन में आ गया, ट्राई ब्लॉक के अंदर तुम्हें स्टैक डॉट पॉप करना है, बाहर नहीं करोगे, बाहर नहीं करोगे, बाहर करोगे तो एरर हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टैक पॉप करना है, अगर एरर जनरेट नहीं हो रहा है तो वैल्यू पॉप होके प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर जनरेट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा, आके वो प्रिंट कर देगा स्टैक अंडरफ्लो। ये हो गया। डिस्प्ले फंक्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है प्रेस 3 टू डिस्प्ले द स्टैक। तो डिस्प्ले पे क्या हो रहा है, सिर्फ वो जो स्टैक वेरिएबल था ये वाला, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, डिस्प्ले द स्टैक। और क्या था, प्रेस 4 टू एग्जिट, जब 4 करेगा तब वो ब्रेक देगा। ठीक है, ब्रेक से ही हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज द कंडीशन ऑफ द लूप इज ट्रू, तो ब्रेक से ही बाहर निकलेंगे। सो इफ ch equals to 4, दैट मींस इफ यू वांट टू एग्जिट तो क्या हो जाएगा, ब्रेक। और अगर यूजर 1 2 3 और 4 के अलावा कुछ और देना चाहते हैं, देते हैं गलती से, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, प्लीज एंटर द करेक्ट चॉइस। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ कैसे ये काम कर रहा है। ऐसे होगा, देखो, प्रेस 1 टू पुश, सोचो कि 1 दे दिया, कुछ वैल्यू तुम पुश करना, क्या प्रेस 1 टू पुश। ठीक है, एंटर एन एलिमेंट टू पुश, मैंने 7 डाल दिया। और एक बार पुश करती हूँ, 1 टू पुश, मैंने 9 डाला। और एक बार पुश करती हूँ, मैंने 2 डाला। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट हम मेरे पास आया, डिस्प्ले करना है मुझे, देखना है कि स्टैक में क्या क्या एलिमेंट मेरे पास आया। देखो 7 9 2, पहले 7 दिया था, फिर 9 दिया था, फिर 2 दिया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सोचो, मुझे करना है पॉप। ठीक है, 2 पुश कर रही हूँ, तो कौन सा एलिमेंट पहले पॉप होगा बताओ। If this is the stack, which element will be popped at first? मैम 2। 2। तो देखते हैं कौन सा एलिमेंट पहले पॉप होता है। देखो 2 पॉप हो गया। ठीक है, अभी पॉप होने के बाद एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं स्टैक को। देखो 7 और 9 है, 2 ऑलरेडी बाहर जा चुका है स्टैक से।
फिर से और एक बार पॉप करेंगे तो क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा? मैम 9। 9। ठीक है, अब और एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं, देखो 7 है। ठीक है, और एक बार पुश कर लेते हैं। ये मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग इसीलिए है, हम जब भी चाहे पुश या पॉप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 8 पुश कर दिया, फिर डिस्प्ले करते हैं, देखो 7 और 8। ठीक है, फिर और एक बार पॉप करते हैं, 8 पॉप हो गया, फिर और एक बार पॉप करते हैं, देखो 7 पॉप हो गया। फिर अगर और एक बार पॉप करेंगे तो क्या होगा, एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं स्टैक। देखो स्टैक इज एम्प्टी। अगर इस टाइम हम पॉप करना चाहते हैं तो क्या होगा बताओ? अभी अगर हम पॉप करें तो क्या होगा? मैम अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, देखो देखो स्टैक अंडरफ्लो एरर दिखाया, बट इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द कोड, मतलब एरर जनरेट हुआ है लेकिन कोड स्टॉप नहीं हुआ है। हाउ? बिकॉज यू हैव हैंडल्ड द कोड यूजिंग द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। अभी भी तुम चाहो तो दूसरा एलिमेंट पुश भी कर सकते हो। सॉरी, गलत कर दिया। हाँ, अभी भी तुम चाहो तो दूसरा एक एलिमेंट पुश कर सकते हो। देखो 7 पुश किया मैंने, डिस्प्ले करो, डिस्प्ले यू कैन डू। नाउ इफ यू हैव डन, you can exit from here. Okay, understood the operation of stack, everybody? यस मैम। Any doubt from this code? ध्यान से देखो, ये दोनों कोड ध्यान से देखो और बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है। ये वाला और दोनों कोड ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों कोड ही लिख के रखोगे। पहले भी शायद ये वाला लिख के रखे थे, अगर नहीं लिख के रखे हो तो दोनों का ही स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ। ध्यान से देख के बताओ if you have anything to ask, because we will end the class of stack here. सबको समझ में आया है stack? यस मैम। Yes or no? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then I am stopping the recording here.